ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام عاصم ہے اور میرا تعلق اس وقت کافی غریب گھر سے تھا۔ ہم اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ انہی کے مکان میں بطور کرایہ دار رہتے تھے۔ پھر ایک دن ابا کی موٹر سائیکل سے بڑی گاڑی کی ٹکر ہوئی اور ابا کی اچانک موت نے سر سے چھت کا سایہ بھی چھین لیا۔ والد کی وفات کے بعد ماں نے دوسری شادی کر لی اور پھر کچھ وقت ساتھ رکھنے کے بعد رشتہ داروں نے مجھے ایک یتیم خانے میں بھرتی کر دیا۔ پھر زندگی کیا تھی؟ بس 2 وقت کی روٹی، تھوڑی بہت پڑھائی اور لمبی خاموشی۔ نہ کسی سے بولنا، نہ کھیلنا، نہ ہی دور دور تک کسی خوشی کا کوئی احساس تھا۔ یہ اور بات تھی کہ یتیم خانے کی آرائش و زیبائش کافی اچھی تھی، لیکن اس کے نام سے ہی اس جگہ کی بے بسی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ یتیم خانہ تھا جہاں خیال رکھنے والے ہزاروں لوگ تھے، لیکن ماں باپ کا پیار اور گھر جیسی آزادی نہیں تھی۔ یقیناً یہاں کا مالک بہت شفیق اور رحم دل تھا جو ہم سب سے ملنے بھی آ جایا کرتا تھا، لیکن یہ گھڑی 2 پل کا ملنا ہی ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے اس یتیم خانے کو چلانے کے لیے انتظامات بھی کرنے ہوتے تھے۔ اس لیے وہ کافی مصروف انسان تھے اور جو فرمائش جو لاڈ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھلا ہم کہاں سے کرتے جب ان کے اس تھوڑے سے وقت میں ہزاروں بچے ایک ساتھ ملنے آ جاتے تھے۔ بس یہ بھی ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا کہ کم سے کم یہ احساس تو تھا کہ ہمارے لیے سوچنے والے بھی کوئی موجود ہیں۔ اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھے بستر اور اچھے لوگ، یہاں سب کچھ ہی اچھا تھا۔ پھر بھی یہاں کی زندگی اچھی نہ لگتی تھی۔ جی چاہتا تھا میں ماں کے پاس چلا جاؤں، پھر چاہے وہ مجھے نوکر بنا کر ہی اپنے نئے سسرال لے کر جاتی، لیکن خود سے الگ نہ کرتی۔ مجھے کتنی ضرورت تھی ان دنوں ماں کی، جب ابا کی موت ہوئی تھی اور میں اماں کے ساتھ 4 ماہ رہا تھا۔ کتنا پیار کرتی تھی مجھے، خود سے دور کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ ابا کے بعد میں ہی اس کا آخری سہارا ہوں۔ پھر کیوں اماں نے اپنے لیے دوسرا سہارا ڈھونڈ لیا اور مجھے بے سہارا کر دیا؟ مجھے اب بھی یاد ہے جب اماں کی عدت کے دن پورے ہوئے اور نانی انہیں اپنے گھر لے جانے آئی تھی تو اماں نے کیسے مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا اور سب سے لڑنے لگی تھی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آج نہیں تو کل میرا بیٹا جوان ہوگا، مجھے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب چچی نے پاس آ کر کہا تھا کہ بھابھی چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے کیونکہ یہ گھر بھی آپ کے دیور کا ہے، شوہر کا نہیں، جس میں آپ بیوہ ہو کر بھی رہ لیں گی۔ پھر ماموں نے بے دردی سے کیسے مجھے اماں سے کھینچ کر جدا کیا تھا، اور پھر وہ میری ماں کو جب رلاتے ہوئے گھر سے لے کر گئے تھے تو میری چچی نے بتایا تھا کہ اب تو ہمارا نوکر بن کے رہے گا کیونکہ اب ان لوگوں کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر سچ میں ہی ان لوگوں نے مجھے نوکر بنا دیا تھا۔ میں جھاڑو پوچھا سب کر لیتا تھا، بس امید تھی تو 2 وقت کی روٹی کی جو مجھے وہاں سے مل رہی تھی۔ اس کے لیے تو میں چچی کی جوتیاں بھی کھاتا تھا۔ جب کبھی گھر کی صفائی اچھی نہ ہوتی تو میری شامت آ جاتی تھی، اور پھر ایک دن میری چچی کو ایک اچھی ملازمہ مل گئی جو اب میری جگہ گھر کی صفائیاں کرتی اور ان کا کچن بھی سنبھال لیتی۔ پھر چچا نے زیادہ خرچے بڑھانے پر چچی سے جھگڑا کیا تھا کہ عاصم جب کام کر لیتا ہے تو ملازمہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر چچی نے ملازمہ کو نکالنے کی بجائے مجھے ہی گھر سے نکالا تھا۔ اس ظالم چچی نے چچا کے گھر لوٹنے تک کا انتظار نہ کیا اور مجھے دھکے مار کر کہا کہ اپنی ماں کے پاس چلا جا۔ اس نے کتنے تانے مارے تھے کہ خود تو تمہاری ماں نئی نویلی دلہن بن کے شوہر کے ساتھ عیش کر رہی ہے اور اپنا بوجھ ہم پر ڈال کر چلے گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا تھا، اور پھر میرے منہ پر چچی نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ میں روتا ہوا محلے میں رشتہ داروں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، لیکن ہر کوئی مجھے دیکھ کر باہر سے ہی لٹا دیتا۔ پھر نہ جانے کیسے ایک رشتہ دار کو مجھ پہ ترس آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے کر گیا اور کھانا کھلایا، لیکن چند روز ساتھ رکھنے کے بعد وہ بھی مجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ گیا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں جس کا سہارا قسمت چھین لے اس کو کوئی سہارا نہیں دیتا۔ پھر یوں ہی میری زندگی کے شب و روز گزرنے لگے۔ مجھے ماں کی امید ہمیشہ ہی لگی رہتی اور فلموں کی دنیا میں ہونے والے معجزوں کی طرح میں سوچتا کہ ایک دن ماں آئے گی اور مجھے یہاں سے آزاد کر کے لے جائے گی اور پھر ہم ہمیشہ کے لیے خوشحال زندگی گزاریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بچپن کا ساتھ جیسے جیسے گزرنے لگا مجھے یقین ہونے لگا کہ اب کوئی نہیں آئے گا، اور بڑا ہونے تک مجھے یہ احساس بھی ہو گیا کہ کسی بھی رشتہ دار کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے سے اس یتیم خانے میں گزارنا کتنا بہتر تھا۔ وہ بچپن تھا جو مجھے سمجھ نہ آئی تھی، لیکن اب جوانی آ چکی تھی جس میں پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں وہاں رہتا تو نہ ہی اچھی تعلیم ملتی، نہ ہی میرا کوئی مستقبل ہوتا۔ میں وہاں پر بس نوکر بن کے ہی پلتا رہتا، جہاں 2 وقت کا کھانا تو مل جاتا لیکن پھر آخر میں وہ مجھے ہی دھکے نصیب ہوتے۔ کتنا بہتر سوچا تھا میرے اس محلے دار نے جس نے مجھے اس یتیم خانے میں بھرتی کروایا تھا۔ ان دنوں میں اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ان دنوں ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں ہنر بھی سکھائے جا رہے تھے۔
ये मरहला मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प था। मैं जी लगाकर काम सीख रहा था और काम के दौरान जिंदगी के पुराने तमाम जख्म भी भरने लगे थे, क्योंकि अब जहन और सोच तब्दील हुई थी। कोई 6 माह की तरबियत के बाद हम सब ने अपने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली थी, जो हमारे रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। फिर जल्द ही दुबई से हुनरमंदों की ज़रूरत की खबर मिली और वहाँ पर नौकरी, रिहाइश और अच्छी तनख्वाहों के बदले पाकिस्तान से नौजवानों को बुलाया गया था। मैंने भी इस सफ़र में हिस्सा लिया और दुबई के लिए रवाना हुआ था। मेरा बहुत दिल था कि एक बार दुबई जाने से पहले अपनी माँ को देख लेता, क्योंकि पता नहीं फिर ज़िंदगी में मैंने वापस लौटना भी था कि नहीं, क्योंकि पीछे मैं कुछ भी तो छोड़कर नहीं जा रहा था। मैं तो खाली हाथ रवाना हो रहा था। जो कुछ भी अपने लिए करना था वहीं पर करना था। फिर किसके लिए लौटने का सोच कर जाता। शायद इन लोगों को अब तक मेरा नाम भी याद ना हो, जिन्हें याद करते मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन आखिरी बार किसी जगह से जाने का दुख भी कुछ अलग ही होता था। दिल में एक अजीब किस्म का खालीपन था और आंखों में अपनों को देखने की चाह थी। भले सब ने मुझे ठुकराया था, लेकिन अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं रहा। जो भी गिला था बस अपनी किस्मत से था, जिसे मैंने दिल के किसी गुमनाम कोने में छुपा कर जीना सीख लिया था। जब मैंने घर छोड़ा था, इस वक्त भी मैं इतना समझदार तो था कि मुझे आज तक वो गली मोहल्ला और वहाँ का पता ठीक से याद था। फिर इस गली से निकलने के बाद मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार वहाँ वापस जाने की हिम्मत की थी। बोझल कदमों के साथ चलता मैं अपने पुराने मोहल्ले में पहुँचा था। यहाँ कदम रखते ही सारे पुराने जख्मों के टांके उधड़ चुके थे। एक एक पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अभी कल ही की तो बात थी जब मैं अब्बा के साथ इनकी मोटरसाइकिल पर बैठा होता और हम दोनों घर का सामान खरीदने जाते थे। रास्ते में तरह तरह की चीज़ों की फरमाइशें करता। अब्बा से कितनी बातें करता था मैं, और मेरी हर बात का जवाब अब्बा हंस हंस कर दिया करते थे। कभी मेरी मांगी हुई कोई चीज़ या खिलौना खरीद कर देते, तो कभी महीने की पहली तारीख का वादा करते कि तनख्वाह मिलते ही मैं अपने प्यारे बेटे को इसकी पसंदीदा चीज़ दिलवा दूंगा। और वापसी पर अम्मा का मुस्कुराते चेहरा हमारा इस्तकबाल करता और अब्बा की मोटरसाइकिल से सामान उतारते वक्त मुझसे पूछना कि आज फिर बाबा को बहुत सारी फरमाइशें करके तंग तो नहीं किया ना। और बाबा का फिर इनको झिड़कते हुए कहना कि मेरे बेटे को कभी मत रोका करो, क्या पता मेरी ज़िंदगी के बाद इसकी फरमाइशें कौन पूरी करेगा भी कि नहीं। फिर अम्मा का मुझे सीने से लगा लेना। ये सब ख्यालात न जाने कैसे आज मेरे दिल में उमड़ आए थे। मेरी आंखों से बहते आंसू न थमने वाली बारिश का रूप ले लिया था और मैं अपनी हिचकियों की आवाज़ पे होश की दुनिया में वापस आया था। चलते चलते अब तक मैं घर के गेट तक पहुंच चुका था, जहां मुझे एक नौकर के तौर पर भी जगह न मिली थी और धक्के देकर निकाला गया था। बचपन की हज़ारों खूबसूरत यादें इस घर से जुड़ी थीं, तो वो कुछ तलख हक़ाइक़ भी मैंने यहाँ देखे थे। लेकिन फिर भी यही एक डर था जहाँ मेरे ख़ानदान वाले रहते थे। मैंने फिर बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए डोर बेल बजाई थी। अभी मैं अपनी सोचों में गुम था कि सामने दरवाज़ा खुलने के बाद मैं कैसे इन लोगों का सामना करूंगा और क्या कहूंगा कि वापस मैं क्यों आया हूं। अभी इसी कश्मकश में था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी और इस तरफ देखने पर मुझे एक बहुत ही बाहया और खूबसूरत लड़की नजर आई, जिसने झिझकते हुए पूछा था कि आप कौन हैं और किससे मिलने आए हैं। तो मैंने उससे बताया था कि मैं यहाँ अपने चच्चा से मिलने आया हूँ। तो उसने फ़ौरन से पूछा था कि आप आसिम हैं। मैंने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा था और बताया था कि हाँ, मैं आसिम ही हूँ। आप कौन हैं? पूछने पर उसने कहा था कि मैं आपकी कज़न फ़ातिमा हूँ। तो मुझे उसका बचपन याद आया था कि ये बहुत छोटी थी जब मैं यहाँ से निकला था। फिर उसने फ़ौरन मुझे अंदर आने का कहा और अंदर जाकर पता चला कि घर में चच्चा और चच्ची मौजूद न थे। मैंने ये जानने के बाद इजाज़त चाही, लेकिन फिर फ़ातिमा ने ज़बरदस्ती चाय का बोलकर मुझे बिठा दिया। मुझे समझ नहीं आई थी कि जब इसके वालिदैन मुझसे इतनी नफ़रत करते थे तो वो क्यों इतनी पुरतकल्लुफ़ हो रही थी। चाय के साथ उसने काफ़ी सारे लवाजमात का इंतज़ाम किया, जिससे ये साफ पता चलता था कि चच्ची खुद जैसी भी थी, लेकिन बेटी की तरबियत उन्होंने बहुत खूब की थी। एक आधा घंटा वहाँ बैठने के बाद दरवाजे की घंटी एक बार फिर से बजी थी और फातिमा दौड़कर बाहर निकल गई थी कि बाबा आ गए होंगे। फिर सामने चच्चा को आते देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया था। वो जैसे भी रहे थे, लेकिन मेरे बाबा के भाई थे। मैं अब तक सबको दिल से माफ़ कर चुका था। चच्चा ने भी मुझे देखते ही पहचान लिया था। उनकी आंखों में शर्मसारी में साफ साफ देख सकता था, लेकिन फिर उनसे नजरें ना मिलाकर मैंने उनका काम आसान कर दिया। अगर मैं उनकी तरफ देखता तो वो शायद मुझसे बात तक न कर पाते। चच्चा ने कुछ पल खामोश रहने के बाद मुझे गले से लगाया था और उनकी आंखों से भी आंसुओं ने बेमौसम बारिश बरसाई थी। उनका रोना मुझे समझ में तो ना आया था, क्योंकि मुझे लगता था कि अब तक मैं इन लोगों के वहमो गुमान तक से निकल चुका हूँगा। लेकिन फिर चच्चा ने रोते हुए मुझसे माफ़ी तलब की और बताया कि मैं अपनी बीवी के सामने मजबूर हो चुका था, वरना कभी मैं अपने मरहूम भाई की औलाद को
इस दुनिया में धक्के खाने न छोड़ देता। मैं चचा को समझाते हुए कहा कि मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। वो सब मेरी किस्मत का लिखा था। अगर आप ना भी निकालते तो मुझे इस जगह बड़ा होना था जिसे कोई बदल नहीं सकता। फिर चच्ची का जिक्र आने पर मैंने कज़न से चच्ची के मुतालिक पूछा था कि मैं जाते वक्त उनसे भी मिलना चाहता था, लेकिन एक अफसोसनाक खबर फिर मुझे उनके मुतालिक पता चली कि मेरी चच्ची कब की इस दुनिया से वफ़ात पा चुकी थी। मुझे उनकी मौत का सुनकर शदीद झटका लगा था और फिर मेरे अफसोस के इजहार के बाद फातिमा ने रोते हुए मुझसे इल्तिजा की थी कि मेरी माँ ने जो भी तुम्हारे साथ सलूक किया था उसके लिए उन्हें माफ़ कर दो। मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। और फिर आखिर मैं खुद को रोक न सका और चचा से अपनी माँ के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं। तो चचा ने बताया कि उनकी शादी के बाद हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, बस इतना सुना था कि वो अपने दूसरे शौहर के साथ किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो गई हैं। माँ से मिलने की उम्मीद मेरी पूरी ना हो सकी और मैंने फिर जाने की इजाज़त अपने चचा से तलब की, तो उन्होंने फिर मिलने का वादा लेते हुए मुझे इजाज़त देना चाही थी। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, इसलिए आखिरी बार मिलने आया हूँ। तो चचा ने कहा था कि बेटा, तुम्हारे अलावा हमारा कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, मेरी बेटी जवान है, इसका रिश्ता अगर तुम कबूल कर लो तो टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे। मैंने एक नज़र फातिमा की तरफ देखा तो वो भी उम्मीद भरी नज़रों से मेरे जवाब की मुंतज़िर थी। फिर इनकार करने का मेरा जी नहीं चाहा था और मैंने फातिमा को अपनी इमानत कहते हुए चचा से इजाज़त चाही थी। जाते जाते मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इन लोगों को लिख कर दिया था, वहाँ से चला आया था। कितनी अजीब है ये दुनिया भी, जिन लोगों ने दुनिया जहाँ के धक्के खाने के लिए अकेला छोड़ा था, आज वो खुद रिश्ता जोड़ना चाहते थे। लेकिन फातिमा के चेहरे से झलकती मासूमियत ने मुझे भी हाँ कहने पर मजबूर कर दिया था। बाकी के दिन मैं जितने भी अपने वतन में रहा था, इन लोगों से एक दो बार फिर मुलाकातें हुई थी। तब फातिमा ने मेरे लिए कुछ तोहफे भी बनाए थे जो जाते वक्त उसने मुझे दिए थे, लेकिन दुनियावी चीज़ों में अब मेरी ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, तो इसकी दी हुई चीज़ें मैंने वहीं यतीम खाने के बच्चों को दे दी। आखिरी दिन फिर अपने रूहानी बाप यानी कि हम सब के मेहरबान इस यतीम खाने के बानी से हमने ढेर सारी दुआएं लेकर रवाना हुए। वो लोग मेरी रवानगी पर एयरपोर्ट तक आए थे। मैंने जाते जाते उनके साथ अपनी किस्मत को भी सलाम किया था, जिसने इतना रुलाने के बाद आखिर में मेरे अपनों को मेरी कदर सिखा दी थी। मैं जब जहाज़ में बैठा तो मुझे फातिमा का मासूम चेहरा और उसकी आंखों से बहते वो नदामत के आंसू याद आए थे, जिस बात में उसका कोई कसूर तक न था। इसके लिए इस बेचारी ने कितनी माफ़िया मांगी थी, इसकी खातिर मैंने उसकी माँ को भी माफ़ किया था। फिर दुबई पहुंचकर अगले ही दिन हमारे काम का आगाज़ हो गया। अब ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ गुजरने लगी थी। जी लगाकर मैं मेहनत कर रहा था और कुछ ही माह में यहाँ पर बेहतरीन कारीगर बन चुका था और इतने पैसे कमाने लगा था कि शायद अपने मुल्क में इस पैसे से एक आलीशान ज़िंदगी गुजारी जा सकती थी। अपनी कमाई का खासा हिस्सा मैं इस यतीम खाने की नज़र करता था, जहाँ से मैं पल कर बड़ा हुआ और यहाँ इस कामयाबी तक पहुँचा था। वहाँ मेरे जैसे लाखों हज़ारों बेसहारा बच्चे थे, जिनको एक दिन मेरी तरह कामयाब इंसान बनना था। कामयाबी के सफ़र तक पहुँचते पहुँचते फातिमा ने मेरा बहुत साथ दिया। दुबई आने के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब उसने फ़ोन करके मेरी खैरियत मालूम न की हो। मुझे उसका ये ख्याल रखना, मेरी फ़िक्र करना मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा था। और फिर ये भी महसूस हुआ था कि मोहब्बत दुनिया के हर एहसास पर भारी थी। दुख सुख गम और तकलीफ़ें मुझसे फातिमा की बेलौस मोहब्बत ने भुला दिए थे। अब अगर वो ज़रा सी देर करती तो इसकी आवाज़ सुने बिना मेरी जान निकलने लगती थी। मुझे मेरा वजूद इसी के दम से मुकम्मल लगने लगा था और ऐसा लगता था उसके होते मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रही। यूँ ही ज़िंदगी अपने तमाम तर खूबसूरत एहसासात के साथ रवां दवां थी। देखते ही देखते इस पराए देश में ज़िंदगी के 3 साल गुजरे थे और इन 3 सालों में हमने इस मुल्क में अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे, तो बेशुमार दौलत भी कमाई थी। अब इंतज़ार था तो बस इस बात का कि चचा मुझे बुलाकर निकाह का कहते और मैं अपने दिल में बसने वाली शहजादी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। फिर किस्मत मुझ पे मेहरबान होती चली गई और वो दिन भी आया जब चचा ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम जब चाहो अपनी इमानत लेकर जाओ। ये खबर मिलते ही मैं खुशी से झूम उठा था और पाकिस्तान जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने फातिमा के लिए शादी की हर चीज़ यहाँ से ख़रीदी थी। जो यहाँ की शरीफ ज़ादियों के लिए बेहतरीन मलबूसात बनते थे वही मैंने फातिमा के लिए बनवाए थे और तमाम तर तहाइफ के साथ मैं फिर वतन पहुँचा तो चचा ने बहुत दिल से मेरा इस्तकबाल किया था। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद हमारी शादी की तैयारियां हुई थीं, जिसमें तमाम रिश्तेदारों को मदऊ किया गया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें मैंने बचपन के बाद अब देखा था और इन लोगों ने भी मुझे आज से पहले भुलाया हुआ था, लेकिन अब मेरी शान और शौकत और दौलत देखकर सारे रिश्तेदार दंग रह गए थे। कुछ अपने रवैयों पर शर्मसार थे तो कुछ मेरी खुशामद में मेरे गुन गाते न थकते थे। बाकियों को तो अब मेरे वालिदैन की अच्छाइयाँ याद आने लगी थी, जिनसे अब मुझे तशबिया दी जा रही थी।
लेकिन बचपन में जब मुझे ज़रूरत थी तब तो किसी को कुछ याद ना आया था। हर कोई बस रिश्तों को अपनी कामयाबी की खातिर सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ना चाहता था। कभी किसी ने गिरे पड़े किसी लाचार को हाथ देकर ऊपर नहीं उठाया था। लेकिन ये सब भूल गए थे, जो गिर कर उठता है वही सबसे ऊपर जाने का हुनर रखता है। हमारे निकाह की तमामतर रस्मात एक के बाद होने लगी। हमारे ददियाल में तो बहुत ज़्यादा करीब के रिश्तेदार ना थे, लेकिन फातिमा का ननियाल बहुत बड़ा था, जहाँ की औरतें और लड़कियाँ न जाने कौन कौन सी रस्में बताकर पैसे मांगती थीं। तो मेरे हाथ भी खुला था, जिसने जितना मांगा मैंने दे दिया। भला मुझे यहाँ की रस्मों और रीतों का कहाँ से पता होता। शायद ये एक ऐसी देसी शादी थी जो मैंने पहली बार देखी थी। और अजब की बात यह कि मेरी अपनी ही शादी थी। फिर कोई एक हफ्ता माइयों मेहंदी ढोलकी और पता नहीं क्या क्या कहकर इस औरतों ने रस्में निभाई थी। तब जाकर हमारे निकाह का मौका आया था और खूबसूरत परी, वो मेरे दिल को जीतने वाली मासूम शहजादी, दुल्हन बनकर मेरी बगल में बैठी थी। मैं उसका जितना भी शुक्रगुजार होता वो कम था, क्योंकि इस लड़की ने मुझे मेरे खोए हुए रिश्तों से मिलाया था। मैंने दुबई में फातिमा के लिए आलीशान घर सजाया था। शादी के बाद 1 महीना यहाँ मैं उसके साथ रहा और उस 1 माह में उसने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी अता की थी। वो कितनी बावफा और खिदमत गुजार बीवी बनी थी। बेइंतहा खूबसूरती के साथ साथ वो मासूमियत और हया का पुतला थी। इतनी सारी खूबियों के बावजूद ज़रा सा घुमंड उसमें नहीं था। मेरे सामने हमेशा आजिज़ी से वो खड़ी रहती थी। ऐसा लगता वो इस ज़मीन की नहीं, कोई कोहकाफ की परी थी, जो ना सूरत में ना सीरत में किसी से मिलती थी। लेकिन जब दुबई वापसी का वक्त आया तो कुछ कागजात के मसलों के बायस वो मेरे साथ न चल सकी थी। अब उसको यहाँ अकेला छोड़ना मेरे बस की बात नहीं थी। उससे आगे की ज़िंदगी में एक पल के लिए भी मैं उसको खुद से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी सर पर आ खड़ी थी। मुझे काम पर बुलाया जा रहा था। छुट्टी के दिन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फातिमा का मसला हल ना हुआ था। मजबूरी थी, उसे यहाँ छोड़कर मुझे जाना पड़ा था। मेरे जाने के वक्त वो कितना रोई थी। इस सदमे ने उसे बीमार कर दिया। फिर उसको यूं बीमार और बेहाल छोड़कर मुझे रवानगी लेनी पड़ी, जिसके लिए मुझे चचा ने राज़ी किया था। उन्होंने वादा किया था कि जल्दी फातिमा के तमाम कागजात मुकम्मल करके वो उसे मेरे पास भेज देंगे। और फिर दुबई जाकर मैं उसके आने के दिन गिनने लगा। मेरे जाने के बाद उसने बताया कि चचा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी, जिसके बायस वो इनकी खिदमत में लगी रहती। फिर ना तो मुझसे ठीक से बात करती और ना चचा को अकेला छोड़कर मेरे पास आ सकती थी। इसके अलावा चचा का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। 1-2 माह तो मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गुजारे थे। हर पल बस उसके आने का ख्याल दिल पर लगा रहता। लेकिन फिर मैं भी अपने दिल को उसको मजबूर देखते हुए समझा लिया था और उसके वालिद की सेहतयाबी की दुआएं करने लगा। फिर देखते ही देखते 6 माह का वक्त गुजर गया और एक दिन फातिमा ने फ़ोन करके बहुत खुश होते हुए बताया कि उसकी बैंक में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर नौकरी लगी थी। उसने कहा कि ये नौकरी करना उसका बचपन का ख्वाब था, लेकिन मेरे दिल को इसकी ये बात न भाई। भला मैं यहाँ किसके लिए इतना कमा रहा था। मैंने कई बार इशारतन उसे नौकरी छोड़ने का कहा, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होती थी और उसका वहीं पर काम में दिल लग गया था। हमारी जुदाई को फिर 6 माह से 1 साल होने को आया। फातिमा चाहती थी कि मैं उनके पास पाकिस्तान चलाऊं और मेरी मर्जी थी कि वो दुबई आ जाए। इसी बात पर फिर हमारी तकरार शुरू थी। 1 साल बाद मेरे चचा का भी इंतकाल हुआ। मुझे उनके गुजरने का शदीद दुख था, लेकिन अब फातिमा को इनकी जिम्मेदारी से भी आज़ादी मिली थी। लेकिन वो फ़कत इस बैंक की नौकरी की खातिर मुझसे दूर रह रही थी। मैं जब भी घर फ़ोन करता वो घर पर ना होती। न जाने कौन से कामों में उसने खुद को इतना मसरूफ़ कर दिया था कि दिलो जान से चाहने वाले शौहर के लिए भी अब उसके पास वक्त नहीं था। उसके मोबाइल पर कॉल करता तो अक्सर वो कह देती कि ड्यूटी पर बहुत मसरूफ़ हूँ। फिर मैं घर कॉल करता तो मुलाजमा ही फ़ोन उठाती। वो मेरी खैरियत पूछती और फातिमा की रूटीन बताती कि वो किस कदर अपनी ड्यूटी से वफादार थी। मैं कभी फातिमा का पूछता, कभी घर का पूछता। वो मुलाजमा फिर ढेर सारी बातें करती। वो बहुत गरीब घर की थी। मैं उससे कहता कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताया करो, मैं दुबई से भेज दिया करूँगा। बदले में बस तुम मेरी फातिमा का ख्याल रखा करो। यूँ वो कभी कपड़े, कभी ज़रूरत की अशिया तो कभी पैसे मांगती। मैं हर चीज़ उसे भेज देता, जिसका इल्म फातिमा को ना था। यूँ हमारी बातों का सिलसिला लंबे से लंबा होता चला गया। वो कई बार अपने दुख दर्द सुना कर रो दिया करती तो मैं तसल्लियाँ देकर उसे चुप कराया करता। फिर उसको जिससे जो भी शिकायत होती या ज़िंदगी की कोई भी तकलीफ़ मिलती वो बताया करती और कहती कि आपको बताकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। फिर मैं मजाक करता और उसे खूब हंसाया करता। वो भी एक कम उम्र लड़की थी जो सिर्फ़ और सिर्फ गुर्बत के बायस मजबूर होकर ये मुलाजमत करती। उसकी मजबूरियों का सुन सुन कर न जाने कब उसके एहसास ने मेरे दिल में मोहब्बत की जगह ले ली। उसकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगने लगी थी। उसका वही अंदाज था जिस तरह से फातिमा ने मेरा दिल जीता था। दिन का कोई ऐसा पल न था जब वो फ़ोन पर मेरी खैरियत न पूछती। वहाँ इतनी दूर रहकर भी उसको मेरे खाने पीने, सोने और काम तक के वक्तों का पता था और हर चीज़ की वो तफसील के साथ मालूमात रखती थी। फिर अगर ज़रा बराबर भी मैं अपनी किसी चीज़ में लापरवाही बरतता
तो वो गुस्सा होकर नाराज़ होने लगती। यही उसकी मोहब्बत और तवज्जो मुझे उसका दीवाना बनाती गई और देखते ही देखते मैं इस पर फिदा हो चुका था। फातिमा की जब से नौकरी लगी उसने एक बार भी मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। वो अकेली थी और अपना खर्चा खुद उठाती थी, जबकि उसकी मुलाजमा पूरे घर का खर्चा मुझसे लेती थी। मैं हर माह पाबंदी से ढेर सारे पैसे उसे भेजा करता था कि इसके अलावा मुझसे लेने वाला भी कोई नहीं था। मुझे पैसों की वैसे भी शुरू से कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बचपन से मोहब्बत के लिए तरसा था और मुझे वो मोहब्बत सिर्फ इस लड़की ने दी थी जिसने अपना सारे का सारा वक्त मेरे लिए ही रखा था। दिन या रात का कोई भी वक्त हो, कोई भी हिस्सा हो, मैं अगर बात करना चाहता तो उसके मुंह से कभी इनकार का एक लफ्ज़ न निकलता था। वो मेरी हर बात पर जी जी करती, अपनी नींदें तक कुर्बान कर देती थी। फिर एक दिन उसने खबर दी कि घर वाले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं, जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। तो मेरे दिल पर एक क़यामत टूटी थी। लेकिन मैं इस मामले में फातिमा से बहुत डरता था, जबकि उसने तो अब तक मुझे फरामोश किया हुआ था। बात अगर होती भी तो बस ऊपरी ऊपरी हाल अहवाल तक, प्यार मोहब्बत का कोई हमारे दरमियान जिक्र तक ना रहा था। जबकि मुलाजमा ने जल्दी मचाई थी कि मैं उससे निकाह कर लूँ, वरना घर वाले दूसरी जगह उसकी शादी कर देंगे। इन दिनों मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो गया था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं निकाह करके मुलाजमा को दुबई ले जाऊंगा, और फातिमा तो वैसे भी बैंक की नौकरी नहीं छोड़ना चाहती। मैंने मुलाजमा से कुछ दिन रिश्ते को टालने के लिए कहा और जल्दी मैंने अपनी वापसी का कहा। इसकी खातिर मैंने अपने काम से छुट्टी की दरख्वास्त दी और छुट्टी मिलने तक का इंतज़ार करने लगा। लेकिन फिर उसी वक्त के दौरान मुझे एक दिन फातिमा की कॉल आई और उसने बताया कि घर पर पुलिस आई है, क्योंकि मुलाजमा ने कहा है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे मुलाजमा की इस हरकत पर बहुत हैरत होने लगी कि जब मैंने निकाह का वादा किया था फिर क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था और मुझे छुट्टी भी मिल चुकी थी, तो मैं वहीं जाकर पूरा मामला देखने का फैसला किया। अगले ही दिन मैं दुबई से पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन यहाँ पहुंचकर मुलाजमा से मोहब्बत की बात करते मुझे फातिमा से हिचकिचाहट हुई थी, इसलिए अभी मैंने उससे कुछ ना बताया था। लेकिन अगले दिन फातिमा के ड्यूटी पर चले जाने के बाद मैंने मुलाजमा से बात करना चाही और किचन की तरफ गया तो वो मुझे देखकर काफ़ी घबराहट का शिकार हुई और घबराते हुए बार बार मुझसे नजरें बचाकर आटे के डब्बे की तरफ देखती। मैंने उसकी इस हरकत को महसूस कर लिया, लेकिन अभी इस पर जाहिर नहीं किया था। फिर बात करते मैंने उससे मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाने और पुलिस बुलाने के मुतालिक पूछा, तो उसने बताया था कि मुझे डर लग रहा था कि आप मुझ जैसी गरीब लड़की से कभी निकाह नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये इल्ज़ाम लगाकर आपको निकाह के लिए मजबूर करना चाहती थी। मैंने उससे सवाल किया था कि मेरी मोहब्बत पर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आया, जबकि मैंने मोहब्बत की खातिर तुम्हें कितना कुछ दिया था। वो अब तक मुकम्मल घबरा चुकी थी और कोई जवाब न दे सकी थी। लेकिन फिर अचानक घर में फातिमा के दाखिल होते ही हम दोनों ने इस बात को वहीं अधूरा छोड़ दिया। शायद फातिमा बैंक से छुट्टी करके जल्दी लौटी थी, लेकिन मुझे मुलाजमा से बात करता देखकर वो भी चौंक उठी थी और सवाल करने लगी थी कि हम दोनों किस मामले पर बात कर रहे थे। तो मैंने उससे मुतमईन करने के लिए कहा था कि मैं मुलाजमा को नौकरी से निकालने लगा था क्योंकि इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। फिर मैंने मुलाजमा को किचन से और घर से बाहर जाने का कहा, लेकिन उसकी नज़र अब आटे के डब्बे पर जम चुकी थी और वो किचन से निकलने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा रद्दअमल देखते फातिमा ने भी मेरा साथ दिया और मुलाजमा को इज्जत के साथ चले जाने का कहा। अब मुलाजमा के पास यहाँ रहने की कोई वजह न ठहरी थी और घबराते हुए किचन से बाहर निकली थी और घर चली गई थी। फिर फातिमा को कमरे में भेजकर मैंने फ़ौरन वो मशकूक आटे का डब्बा खोला जिसकी तरफ बार बार मुलाजमा की नज़र जा रही थी। मैंने वो डब्बा खोला तो जान निकल गई। इस डब्बे में मुलाजमा का मोबाइल फ़ोन पड़ा था, जो शायद उसने मुझे देखकर यहाँ छुपाया था, पर हमने उसे ये फ़ोन उठाने तक का मौका न दिया था। मैंने फ़ोन देखा तो इस पर कई मिस्ड कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। मैं एक एक करता वो मैसेजेस खोलता गया और जैसे जैसे मैंने वो मैसेज पढ़े तो मेरे होश ठिकाने आए थे। इस मुलाजमा के मेरे अलावा और भी बहुत सारे लड़कों से राब्ते थे जिनसे वो मेरी ही तरह लाखों रुपए मैसेज में मांगती रही थी और मुझसे तो आज तक वो अच्छे खासे पैसे बटोर चुकी थी। ऐसा लगता था इसका तो काम ही यही था कि अमीर मर्दों को मोहब्बत में फंसा कर पैसे लेती रहे। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ चुका था। उसने मुझे इतना अरसा बेवकूफ़ बनाया था और इससे भी ज़्यादा गुस्सा मुझे अपने आप पर आया था कि इस धोखेबाज और खबीस मुलाजमा की खातिर मैंने फातिमा जैसी बावफा और ख़ानदानी लड़की को धोखा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा तो था ही, लेकिन अब इस बात को फातिमा तक नहीं पहुँचने देना चाहता था कि वो शायद इस बात का दुख बर्दाश्त न कर सके। मैंने दिल ही दिल में ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं दुबई छोड़कर अब हमेशा अपनी बीवी के साथ उसकी खुशी की खातिर रहूँगा, क्योंकि बैंक की नौकरी उसकी खुशी थी और वो छोड़कर दुबई नहीं आना चाहती थी। भले ही दुबई में मैं उसकी नौकरी से डबल पैसे कमा रहा था, लेकिन अब उसकी खुशी मुझे सारी दौलत से बढ़कर थी। लेकिन मुलाजमा का मसला भी निपटाना था, इसलिए मैं फ़ोन उठाकर उसके घर की तरफ चला। इस वक्त उनके घर का दरवाज़ा भी खुला था। मैंने अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। वो मुलाजमा कोई गैर शादीशुदा लड़की नहीं
बल्कि कई छोटे बच्चों की माँ थी। इस वक्त उसकी गोद में एक बच्चा मौजूद था जिसको वो दूध पिला रही थी और सामने उसका शौहर भी बैठा था। मुझे देखते ही वो दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। शायद उसका शौहर उसकी तमाम हरकत से वाकिफ था। मैंने फ़ोन इस मुलाजमा की तरफ बढ़ाते हुए उससे सारे मैसेजेस के बारे में पूछा तो वो घबरा कर रोने लगी। इसका शौहर और वो लड़की खुद पैरों में गिरकर मुझसे माफ़िया मांगने लगे कि ये सब हम दोनों ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर किया था, और अब जब निकाह तक करने के लिए राज़ी हुए तो हमने डर कर आप पर इल्ज़ाम लगाया और मज़ीद पैसे निकलवा कर जान छुड़ाना चाही थी, क्योंकि कैसे मैं आपसे निकाह करती जब मैं पहले से शादीशुदा और इतने बच्चों की माँ थी। आपकी तरह इन सब से भी मैंने बहुत सारे पैसे खाए जिनके मैसेजेस आप मेरे फ़ोन में देख चुके हैं। फिर उसने रोते हुए बताया कि आजकल के हालात और महंगाई ने हमें गलत काम पर उकसाया था, पर हम अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं। क्या करते? इस मुल्क के अमीरों से पैसे निकालने का यही एक तरीका मुझे सूझा था, क्योंकि सीधे रास्ते पर चलते किसी को हम पर तरस नहीं आता। लेकिन आज मैं तौबा करती हूँ कि कभी गलत रास्ते पर चलकर पैसे नहीं बनाऊंगी। मैंने फिर उसे कोई सज़ा नहीं दी थी और छोटे बच्चों की खातिर माफ़ करके वहाँ से निकल आया था। घर पहुँचकर मैंने फातिमा को किचन में काम करते पाया। उसने आज मेरे लिए अपने हाथों से खाना पकाया था और फिर खाने की मेज़ पर उसने मेरी तरफ एक कागज़ बढ़ाते हुए कहा कि मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी है और फैसला किया है कि अब हमेशा के लिए वहाँ रहूँगी जहाँ आप मेरे साथ होंगे। मैं ये खबर सुनकर खुश हो गया और चंद ही रोज़ में हम दोनों ने दुबई पहुंचकर अपनी खुशहाल जिंदगी का आगाज़ किया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।